गर्भ संस्कार थ्रू her personalized through her personalized approach. She has helped numerous couples achieve safe pregnancies and deliver healthy and intelligent children. Her exceptional work and outstanding contributions in the field have been recognized through prestigious awards such as Vaidya Ratna Award from AL Forest Charitable Trust in 2023 for formulating Ayurvedic medicine or the HIT. I can't pronunciate exactly. AUTIHITA. It was written, which gives a ray of hope in the lives of parents with autistic children. The Tamil Women Excellence Devi Mariamman Health Science Award by Kailash, Canada for her services in autism and infertility. She was also honored as the professional woman Entrepreneur of the Year at the Women Leaders Forum 2022, acknowledging her remarkable achievements and contributions in the education and business sectors, making her an inspiring figure for the next generation. It was a brief introduction regarding Dr. Pushkala Badrinaran. Carry forward, Dr. Dinesh. हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर पुष्पला बद्रीनारायण मैम को अपना लेक्चर स्टार्ट करें मैम। हेलो, ऑडिबल है ना सर? हेलो, हाँ मैडम सुन रहे हैं। yes, yes. Thanks a lot for this wonderful opportunity. First, I want to thank Suresh Jakotia sir. Sir has introduced me to this form. Thanks a lot, sir. And very happy to see Koti Nagarjuna sir also here. I really thank Dr. Surinder Gautam sir for giving me such a wonderful opportunity. Sorry, my health is not so good, so my voice is a little strained today. I have a little fever. I want to give my few cents, whatever I have learned through all these years from various gurus about common gynecological disorders and their management. Namami Dhanvantire Madidevam Surasurair Vandita Pada Padmam Loke Jararugvay Mrityunasham Dhataramesham Vivshadaushadinam. So generally when हम जब देखते हैं जनरली ओपीडी में बहुत सारे गाइनिक केसेस आते हैं आजकल तो इट हैज इंक्रीज्ड पीसीओएस जब मैं 2009 में पीजी करती थी 2006 to 9 30 पेशेंट्स मिलने के लिए थोड़ा मुश्किल था अब 30 नॉर्मल केसेस मिलने के लिए इतना मुश्किल हो रहा है so PCOS is continuously it's increasing fibroids तब तो 35 plus years में फाइब्रॉइड देखते थे अब तो हम 28, 25, 26 में भी हम फाइब्रॉइड्स देख रहे हैं मल्टीपल फाइब्रॉइड्स देख रहे हैं नॉट ओनली फाइब्रॉइड्स यूट्राइन साइज भी इतना बढ़ रहा है along with the fibroids ये क्या दो छोटा फाइब्रॉइड्स होना भी उतना प्रॉब्लम नहीं है जहां हम देख रहे हैं कि यूट्रस 3 times ज्यादा बढ़ रही है सो इसमें से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है सो फाइब्रॉइड्स इज आल्सो अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देन एंडोमेट्रियोसिस सेम एंडोमेट्रियोसिस जब हम पढ़ते थे पीजी करते थे ये क्या 2 केसेस मिलता था हमारे प्रोफेसर्स बुलाते थे देखो देखो एंडोमेट्रियोसिस आया है एडिनोमायोसिस आया है करके अब तो इतना केसेस है as bad as now the new research tells that एक नॉर्मल यंगस्टर इफ शी इज हैविंग सिवियर डिस्मेनोरिया कुछ और रीजन हम देख नहीं पा रहे हैं तो एंडोमेट्रियोसिस को कंसीडर करना है करके रिसर्च बोल रही है सो इतना ज्यादा बढ़ रही है एंडोमेट्रियोसिस और आजकल तो एडिनोमायोसिस एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है देन कमिंग टू PID is again pelvic inflammatory disease again it is on the rise lots of issues for fertility also is because of PID infertility though there is no need to mention only almost 28 to 30 million couple in India alone
are infertile. So these introductions से मैं only 3 diseases, PCOS, fibroids, endometriosis तक I want to give a talk on today. So generally मैं ज्यादातर बेसिक्स में नहीं जा रही हूँ, but this is very important. बेसिक्स हमें क्या हिस्ट्री लेना चाहिए. नेचर ऑफ साइकिल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ब्लीडिंग, नेचर ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग कैसा हो रहा है, किस कलर में हो रही है, स्टेन्स हो रहा है कि नहीं, नहीं तो क्लॉट्स हो रहा है कि नहीं, ये सब नेचर ऑफ ब्लीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. म्यूकॉइड हो रहा है, नहीं तो बहुत फ्रॉथी हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दोषिक इन्वॉल्वमेंट. देन कमिंग टू नेचर ऑफ पेन. जनरली क्या होता है, उदावतनी योनि व्यापत हम जब देखते हैं तो एज सुन एज द पीरियड स्टार्ट्स ब्लीडिंग स्टार्ट्स, पेन कम हो जाती है. मगर उतना केसेस अभी नहीं मिल रहा है. अब तो कितना मिल रहा है, 1 week बिफोर पीरियड्स इटसेल्फ द पेन स्टार्ट्स, क्योंकि इतना पेल्विक लीशंस भी ज्यादा हो रही है. सो जब सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है, कुछ रीजन से पेन हो रही है, तो हम देखते हैं कि पेन एटलीस्ट फ्यू डेज बिफोर पीरियड से शुरू होके टिल ब्लीडिंग तक पेन होता है. इफ देयर इज नो अदर रीजन, प्राइमरी डिस्मेनोरिया है, तो हम देखते हैं कि जस्ट आता है और ब्लीडिंग स्टार्ट होने से 1 या 2 दिन रुकता है और चला जाता है. सो नेचर ऑफ पेन टेल्स यू सो मेनी थिंग्स. Then coming to detailed history, detailed menstrual history, coital history, obstetric history, medical history और surgical history. 2 दिन पहले मुझे एक केस आया था. The woman अभी 1 year मैरिज था उनका, सॉरी 1 month का मैरिज हुआ था. वो भी राजस्थान से है पेशेंट भी. सो 1 month का हुआ है. पेशेंट कहती है कि उसका पीरियड्स बहुत अच्छा हो रही है, रेगुलर हो रही है, सिवियर इंटरकोर्स में सिवियर पेन है कि अभी तक इंटरकोर्स चालू ही नहीं हुआ है. एग्जामिन करने से इट इज अ no, there was no labia minora, there was no clitoral hood, there was nothing, very 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 thin vaginal canal था. So इसीलिए मैंने स्कैनिंग करवाया. यूट्रस इज हाइपोप्लास्टिक यूट्रस. फिर MRI करवाया. ओवरीज आर स्ट्रिक्ट गोनाड्स. सो हम जब हिस्ट्री लेते हैं, वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कितना तक वो सच है और कितना झूठ है. एग्जामिन करने से वो हम वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रूथ और व्हाट इज दिस. सो ऐसा है. सो इस कंडीशन में वेजिनोप्लास्टी का सर्जरी करवाना है, नहीं तो स्लोली वेजिनल डायलिटेशन कराना है. मगर जो मैरिज का बेसिस है वो टोटली झूठ से. ओके, सो मेनी टाइम्स ये काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज वी हैड अ केस ऑफ ट्रिप्लेक्स वाइफ. सो ऐसा होता है कि इट विल शैटर देयर वर्ल्ड. सो एक बार बैठ के टाइम दे के काउंसलिंग भी करना पड़ेगा. सो इसीलिए menstrual history, coital history, ये सब इतना जरूरी है. The more you go into detail, you will get lots of information about that. Then coming to obstetric history. Obstetric history ज्यादातर की हमें जब endometriosis या adenomyosis देखते हैं कि बहुत सारे टाइम अबॉर्शंस हुआ था, नहीं तो क्यूरेटिंग DNC करवाए थे. ये सब obstetric history में भी ये सब आता है. और कैसा है, what is the health of the child, कुछ और प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं, ये सब हमें ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में मिलता है. मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नो व्हाट मेडिसिन्स दे आर टेकिंग. उसके हिसाब से कुछ साइड इफेक्ट्स है जो आप डिसीज जैसे देख रहे हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए. सो मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देन कमिंग टू स्टेट ऑफ माइंड. सौमनस्यम गर्भकराणाम श्रेष्ठम, दैट वी ऑल नो. सो स्टेट ऑफ माइंड, हम जब इनफर्टिलिटी केसेस को देखते हैं या नहीं तो वेरी क्रॉनिक डिसीज को देखते हैं, हमको पता है कि वो द मोमेंट यू स्टार्ट टॉकिंग वो रोने लगते हैं, राइट. सो इतना स्टेट ऑफ माइंड का हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए. यू हैव टू कंसोल देम. आई थिंक एटलीस्ट इफ नॉट फॉल्स प्रॉमिसेस, एटलीस्ट कंडीशन क्या है ये सब अच्छा सा बताने से भी और गाइडेंस करने से भी, फैमिली गाइडेंस करने से भी स्टेट ऑफ माइंड आपको फर्क मिलता है. Then coming to PV and PS examination, especially in endometriosis and adenomyosis, you find that pervaginal perspicuum examination इतना ज्यादा बताती है कि पेशेंट भी some complaints वो भी नहीं बताते. PVPS में हमें पता चल जाता है. So proper pervaginal examination, proper perspicuum examination, बहुत सारे especially
यंग वैद्यस जो हम देख रहे हैं पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करने में भी थोड़ा दिक्कत लग रहा है. So this has to go. Everybody should be very good in at least doing a proper diagnosis and examination. So first PCOS देखते हैं. ये मेरा थीसिस का टॉपिक था 2006 to 9. मेरा थीसिस का टॉपिक था प्रदुष्टार्थवा with special reference to PCOS करके. So directly I'm going to diagnosis. हम सबको पता है PCOS, Rotterdam criteria, 2 out of 3 symptoms होना, ये सब हमें पता है. Just diagnosis को जा रही हूँ. Elevated body mass index and waist to hip ratio, ये early metabolic abnormalities है. ये कैसा रिसर्च हुआ है? बिफोर इवन मेनार्के जब एडोलसेंट बच्चों को स्कूल में हम देखते हैं एलिवेटेड बॉडी मास इंडेक्स, वेस्ट टू हिप रेशियो बढ़ता है, तो उनका चांसेस ऑफ हैविंग पीसीओएस इज मोर. पीसीओएस लाइफस्टाइल डिसीज, इट्स नो मोर अ लाइफस्टाइल डिसीज, इट हैज बिकम मोर और लेस लाइक ए जेनेटिक वन, राइट? जब मदर्स को एएमएच बढ़ के वो कंसीव होते हैं तो फीमेल चाइल्ड विल हैव पीसीओएस. सो ऐसा हो रहा है. सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पीसीओएस भी इतना लीन होता जा रहा है धातुओं में. सो स्टबर्न पीसीओएस हमें मिल रही है. ज्यादातर की पीसीओएस में नॉर्मल मेडिसिन, सुकुमारम कषायम, दानवंतरम गुटिका, स्त्रीता, ये सब सिंपल सा मेडिसिन भी वर्क करता है. मगर आजकल तो इतना स्टबर्न आ रही है. 1 year का अमेनोरिया, 1-2 months कंटिन्यूअस ब्लीडिंग. हमें रिसेंटली एक 15 years का लड़की 4 months कंटिन्यूअस ब्लीडिंग. सो ये सब हमें वेरी मच स्टबर्न केसेस भी आ रही है. इसके हिसाब से मेडिसिन भी थोड़ा पावरफुल बनना है. सो ये हम डिस्कस करेंगे. इंक्रीज LH-FSH रेशियो, ईस्ट्रोजन्स, टेस्टोस्टेरॉन एंड AMH, ये सब जनरली इंक्रीज होता है. SHBG, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, कम होता है. सो ये सब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है along with स्कैनिंग USG pelvis. सो मेन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हमें इरेगुलर साइकिल्स, हाइपोमेनोरिया मिलता है, ओलिगोमेनोरिया मिलता है, मेनोरेजिया, एनोवुलेटरी साइकिल्स लीडिंग टू इनफर्टिलिटी, ओबेसिटी. मैं इसमें हिर्सुटिज्म भी ऐड नहीं किया है क्योंकि ये जनरली हिर्सुटिज्म I have seen in my clinical practice उतना अच्छा सा रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा है. So I have not included. So only these are the general cases that we get. Irregular cycles, hypomenorrhea, menorrhea, ऐसा ही आते हैं. So how do we understand PCOS in Ayurveda? We call it Pradushtartava. Pradushtartava तो है ये one of the main reasons for all the yoni vyapats. So it is, PCOS is not one of the yoni vyapats. It is the reason for many yoni vyapats. That much we can say. So Artava Kshaya, we see, यथा उचित काल आदर्शनम अल्पतावा योनि वेदना. सो आर्तव क्षय हम देख रहे हैं कि प्रॉपर टाइम में नहीं आएगा, ऐसा उचित काल आदर्शना. ये अमेनोरिया भी हम ले सकते हैं, एनोवुलेशन भी ले सकते हैं, उचित काल में दर्शन नहीं होना. अल्पतावा, थोड़ा कम ब्लीडिंग हो जाना, नहीं तो हाइपो ओवुलेशन होना, ये सब भी अल्पतावा हो जाता है. देन कमिंग टू अनार्थवा और नष्टार्थवा, हम देखते हैं कि अनार्थवा में वात कफावृत मार्गाणाम तो अप्रवर्तनम, ओनली अप्रवर्तनम नहीं, प्रवृत्ति नहीं होती है बस, न तो सर्वथा क्षयम याति, प्रवर्तमानम न दृश्यते, न तो सर्वथा क्षयम याति बोलते हैं. ओनली द प्रवृत्ति नहीं हम देख नहीं पाते हैं, मगर सर्वथा क्षयम नहीं आती. हम स्ट्रिक गोनाड्स देखते हैं, नहीं तो अर्ली ओवेरियन फेल्यूर देखते हैं, तो the whole ovarian reserve is lost, ovarian failure हो जाता है. इधर PCOS में उतना नहीं होता है, ओनली प्रवृत्ति हम नहीं देखते हैं, मगर सर्वथा क्षयम न आती, वो अभी भी ओवरीज फंक्शनल है, यू कैन ट्रीट देम. सो वही अनार्थवा और नष्टार्थवा है. देन क्षीणार्थवा से वात पित्ताभ्याम क्षीयते रजः. एक क्षीणार्थवा हम ऐसे भी ले सकते हैं कि बहुत कम पीरियड्स हो रही है और बहुत कम ओवुलेशन हो रहा है, नहीं तो ऐसा भी ले सकते हैं कि क्षीणार्थों में वात पित्त से बहुत सारा ह्यूज ब्लीडिंग आफ्टर हेवी ब्लीडिंग, ये अब क्षीण हो गया है, ऐसा भी हम ले सकते हैं. सो तंत्रकार ऐसा ही बताते हैं. देन कफदुष्टि इन धातु, बहुत सारे धातुओं में और सभी धातुओं में इतना लीनता कफदुष्टि का हो जाता है कि हम एक कफ प्रधान, वात कफ प्रधान
डिसीज जैसा ही लेते हैं। पुष्पग्नि जातहारिणी काश्यप संहिता में हमें रेफरेंस मिलती है, मगर उतना वी डोंट गेट मच डिटेल्स ऑफ दैट। देन हाउ टू अंडरस्टैंड पीसीओएस? वी सी दैट अग्निमांद्य से अपक्व आद्य रस धातु, उससे आम बनता है और साम रस धातु बनती है, उससे रस धातु का उपधातु आर्तवा वो प्रदुष्ट हो जाता है, प्रदुष्टार्तवा होता है। मेनली वात कफ दुष्टि होता है, रस में कफ दुष्टि, वी सी दैट आर्तव क्षय, ये अष्टांग संग्रह में रेफरेंस है। मांस धातु में कफ दुष्टि से हमें अर्बुद मिलता है, सो स्मॉल बबल्स वी सी इन पॉलिसिस्टिक ओवरीज, अपची मिलती है, गलगंड वी सी दैट, एंड गात गौरव वी सी दैट हेवीनेस बनती है। मेदस, मेदो धातु में जब कफ दुष्टि होती है, प्रमेह मिलता है, पीसीओएस में भी मिलता है हमें स्थौल्य, स्थौल्य का उपद्रव, ऑल स्थौल्य उपद्रव, फॉर एग्जाम्पल वी सी द इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो सब भी इधर मिल जाती है। मज्जा धातु में अंग गौरवम होती है, त्वक स्नेह वृद्धि, इसलिए बहुत सारे पिंपल्स होता है, त्वक स्नेह वृद्धि होती है, सो ये मज्जा धातु में देखते हैं। शुक्र धातु में इतना अच्छा सा एक्सप्लेनेशन है, शुक्र शुक्र संचय, संचय होके हमें हिरसुटिज्म ये सब होना शुरू होता है। सो इधर हम मेनली अन्नवह श्रोतो दृष्टि और रसवह श्रोतो दृष्टि देखते हैं। क्यों अन्नवह श्रोतो दृष्टि होती है? अतिमात्रस्य अकाले अहितस्य च, ये सब अतिमात्र में खाना, अकाल खाना, अहित खाना, ये सब भोजनात् अन्नवहीनी दुष्यंती वैगुण्यात् पावकस्य च, अग्नि के दृष्टि से भी अन्नवह श्रोतस का दृष्टि होती है। गुरु शीतम अतिस्निग्धम अतिमात्रम समशनात्, गुरु शीत अति स्निग्ध आहार जब ज्यादा सा लेते हैं, अतिमात्रम भी लेते हैं, तो रसवह श्रोतो दृष्टि होती है। रसवाहिनी दुष्यंती, वेरी इंपॉर्टेंट, चिंत्यानाम च अति चिंतनात्, बहुत चिंता से भी आजकल किसको स्ट्रेस नहीं है, राइट? सो ये स्ट्रेस जब बढ़ता है, रसवह दृष्टि भी होती है, रसवह का रस का उपधातु आर्तव का भी दृष्टि हो जाती है। सो जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखते हैं कि दीपन पाचन, कफवातहर चिकित्सा, वसंत ऋतु परिचर्या विच इज अगेन कफवातहर चिकित्सा, कफ उपक्रमा, हम दिस आर मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। सो जब पेशेंट आते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव लॉट्स ऑफ केसेस विद अमेनोरिया, अमेनोरिया 3 महीना, 4 महीना, 1 ईयर, ये सभी अमेनोरिया केसेस आते हैं। सो फर्स्ट क्या करना है? जनरली हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उष्ण वीर्य द्रव्य दे देते हैं, रज प्रवर्तनी वटी, नहीं तो चित्रकादी वटी, कुछ भी हम थोड़ा उष्ण तीक्ष्ण का दे देते हैं, मगर एवरी टाइम डज इट वर्क इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट हमें स्कैनिंग लेके एंडोमेट्रियम का थिकनेस पता करना चाहिए। क्यों एंडोमेट्रियम का थिकनेस इंपॉर्टेंट है? एनी एंडोमेट्रियल थिकनेस विच इज लेस देन 7 mm इज कंसिडर्ड टू बी थिन एंडोमेट्रियम। जब थिन एंडोमेट्रियम होती है तो वो किसी भी मेडिसिन से इट विल नॉट रिएक्ट टू एनी मेडिसिन। सो ये अमेनोरिया जब एंडोमेट्रियम का थिकनेस 7 से बढ़ के है, प्रिफरेबली 8 से बढ़ के है, 8 मिलीमीटर से बढ़ के है, तो हम उष्ण तीक्ष्ण चिकित्सा, लेखन चिकित्सा, अनुलोमन चिकित्सा, जब भी नॉर्मल मेडिसिन, रज प्रवर्तनी वटी, अर्क पुष्प योग, अर्क पुष्प योग मैंने सुरेंद्र शर्मा सर से सीखा है। अर्क पुष्प योग में प्लेन अर्क पुष्प, इधर व्हाइट या वायलेट, कलेक्ट करके अच्छा सा क्लीन करके, वो अच्छा सा रोस्ट करके तिल तेल में फ्राई करके, उसके द्विगुण गुड़ मिला के टैबलेट्स करवाना है। 3 ग्राम का गुड़ टैबलेट्स बनाना है। इसमें हम एक्स्ट्रा सा टंकन भी ऐड करते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत इजीली यू कैन मेक इट एंड बहुत इफेक्टिव भी है अर्क पुष्प योग। क्योंकि रज प्रवर्तनी वटी तो आजकल उतना रिजल्ट नहीं दे रही है, सो हम लोग तो अर्क पुष्प योग यूज करते हैं। चित्रकादी वटी, सॉरी, सेनोविला टैबलेट है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। सोलिमिक्स का टैबलेट है। स्त्रीहिता, स्त्रीहिता ये हमारा मेडिसिन है, लाइक आई हैव अ फार्मास्यूटिकल कंपनी कॉल्ड अमृतकला आयुर्वेदा, उसका प्रोडक्ट है स्त्रीहिता, बहुत अच्छा सा काम करता है। द्रोण पुष्पी पत्र, हम कहते हैं ना, हम लोग इतने लोग से सीखते हैं, गुरुओं से सीखते हैं, स्टूडेंट से सीखते हैं, पेशेंट्स से भी सीखते हैं। ये द्रोण पुष्पी पत्र का प्रयोग मैंने एक पेशेंट से सीखा था।
द्रोणपुष्पी उनके गांव में एक वैद्य देते थे। द्रोणपुष्पी लीव्स हम 5 लीव्स कलेक्ट करके कल्क जैसा बना के 5 लीव्स 3 टाइम्स पर डे एटलीस्ट 5 डेज या 1 वीक तक देना है। उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रही है, पीरियड्स हो रहे हैं। मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स को मैं डायरेक्टली मेडिसिन नहीं देती हूँ, ऐसे भी बताती हूँ आप ये खा लो, ये ट्राई करो, क्योंकि when they try it they will use it for other patients also। जब एंडोमेट्रियल का थिकनेस 7 mm से कम होता है तो क्या करते हैं, जो भी आप देना, फॉर एग्जाम्पल इवन इफ यू गिव रजप्रवर्तिनी अर्कपुष्प, नथिंग विल वर्क। क्यों? बिकॉज द एंडोमेट्रियम इटसेल्फ इज नॉट फॉर्म्ड। क्यों नहीं फॉर्म हो रहे हैं? क्योंकि आदिरस धातु का प्रॉब्लम है। सो दीपन पाचन करके स्निग्ध औषधास दैट इज नित्य स्नेहपान करने से और वातानुगमन करने से अच्छा सा एंडोमेट्रियल का डेवलपमेंट होता है। और नेक्स्ट स्टेज इज पीरियड्स। सो पिपल अधिकृता हम देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रही है। प्रीवियसली से आई कैन से और 7-8 years बैक आई वाज नेवर यूजिंग पिपल अधिकृता, शतावरी अधिकृता बहुत यूज करती थी, मगर देर आर सम केसेस विच आर वेरी स्टबर्न, उससे उतना रिजल्ट नहीं मिलता था। तो एक बहुत सीनियर रिटायर्ड प्रोफेसर है डॉक्टर रमेश सर करके इधर बैंगलोर में, सर ने पिपल अधिकृता सजेस्ट किया था। तब से मैं इतना फैन हो गई हूँ कि पिपल अधिकृत तो स्नेहपान में नित्य स्नेह में होता ही है मेरा प्रिस्क्रिप्शन में। सो इतना रिजल्ट आ रहा है। सुकुमारम कषायम, धानवंतरम गुटिका, शुद्ध गंधक भी है। शुद्ध गंधक आप उतना सा शोधन भी नहीं करना है, और 2 or 3 टाइम्स दूध में शोधन करके वो यूज करने से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सौभाग्य शुंठी द्वितीय, ये मेरा थीसिस का मेडिसिन था, बहुत अच्छा काम कर रहा था। देन अब एक और प्रॉब्लम है कि मेनोरेजिया, अमेनोरिया तो भी ठीक है, कुछ ना कुछ करके हम मैनेज कर लेते हैं। देर आर केसेस वेयर मेनोरेजिया, कोटी नागार्जुना सर भी है, इतना सारे आई हैव troubled him calling so many times. There are some cases which just don't respond to medicines. So उसमें हम तिक्त पाचन करते हैं, ग्राही मेडिसिन यूज करते हैं। जनरली वासा गुड़चियादि, अशोकत्वक, क्षीरपाकम देते हैं। अशोक चूर्ण प्लस यशद भस्म, ये रस्तरंगिनी का रेफरेंस है, बहुत अच्छा काम करता है। पुष्याणक चूर्ण, गोदंती भस्म, प्रवाल पिष्टि, ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा काम करता है। आई जनरली गिव पुष्याणक चूर्ण, प्रद्रांतक रस, गोदंती भस्म, प्रवाल पिष्टि, ये कॉम्बिनेशन देती हूँ, बहुत अच्छा काम करता है। बहुत अच्छा काम करता है माने तो व्हाट इज द मेन थिंग? पुष्याणक चूर्ण में एक्चुअली आम्र बीज होना है, मगर मार्केट में जो भी हमें पुष्याणक चूर्ण मिल रही है उसमें आम्र होता है। आम्र अम्ल रस का प्रदान है और ब्लीडिंग को बढ़ाता है। आम्र का अस्थि और सीड्स ऑफ मैंगो विल हैव कषाय प्रदान एंड इट विल रिड्यूस द ब्लीडिंग। सो हमने लास्ट ऑलमोस्ट 3 बैचेस पुष्याणक चूर्ण कर रहे हैं, इतना अच्छा रिजल्ट आ रही है। यू डोंट हैव टू मिक्स सो मेनी मेडिसिन, ओनली पुष्याणक चूर्ण देने से भी ब्लीडिंग कम हो रही है इतना, बिकॉज द मेडिसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आयुर्वेदा लेट करके कौन बोलता है ना, इफ द मेडिसिन इज नॉट गुड इट इज लेट, इफ द मेडिसिन इज गुड आयुर्वेदा बहुत अच्छा सा रिजल्ट देते हैं। सो अशोटोन करके एक टैबलेट है, कासिस भस्म प्रवाल पिष्टि है इसमें, वो भी अच्छा काम कर रही है। इम्बुराल करके एक सिद्धा मेडिसिन है, ये भी दिस बोटानिकल नेम इम्बुराल, दैट्स अ सिंगल ड्रग मेडिसिन, बहुत अच्छा काम कर रहा है। लाक्षा कैप्सूल्स भी देते हैं। इसके अलावा अब तो थैंक्स टू कोटी सर सिद्धामृत योग बहुत दे रहे हैं, हैविंग वंडरफुल रिजल्ट। और क्या किया है, हम इधर कर्नाटका में हम एक होम्बाड़े करके प्रेग्नेंट वुमेन को देंगे इन अल्टरनेट मंथ्स, 3rd month 5th month ऐसा देंगे। होम्बाड़े इज नथिंग बट कोकोनट का इन्फ्लोरेसेंस है। सो वो इन्फ्लोरेसेंस जब भी हम पेशेंट को यूज करते हैं, बहुत सारे वी विल जस्ट गेट वेस्टेड। So we have started doing lechia with it, that has a wonderful result in menorrhagia. ये सब जो भी हम करते हैं वात वृद्धि होती है, बिकॉज कषाय प्रधान द्रव्य है। यू हैव टू मेक श्योर एक घृतपान एटलीस्ट अशोकाधिकृत ऐसा कुछ भी आपको जरूर रखना पड़ेगा। और कमिंग टू अनोविलेशन, मेरा मेन फोर्टे इनफर्टिलिटी है। सो अनोविलेशन इतना केसेस में आती है। वात कफ हर चिकित्सा, उष्ण चिकित्सा देने से वी आर हैविंग वेरी गुड रिजल्ट। कमिंग टू अनोविलेशन, देयर आर अगेन 2 टाइप्स ऑफ अनोविलेशन। जब हम देखते हैं फॉलिकुलर स्टडी में एग का डेवलपमेंट ही नहीं होता है, वो एक टाइप का अनोविलेशन है।
हम देखते हैं कि एग का डेवलपमेंट है मगर ओनली रप्चर नहीं हो रहा है, वो भी अनोवुलेशन है। सो क्या मेडिसिन कहाँ यूज करना चाहिए करके। ओके, त्रिकटु नागकेसरा विथ घी इज अ वेरी क्लासिकल कॉम्बिनेशन फॉर अनोवुलेशन। हम MD4 नसीह देते हैं, एक PG का थीसिस भी हो रही है, ये भी हमारा प्रोडक्ट है MD4 का, थैंक्स टू सुरेंद्र शर्मा सर। मुझे मुंडी क्या है, मुंडी गोरख मुंडी का नाम भी पता नहीं था जब आई स्टार्टेड यूजिंग मुंडी विद द हेल्प ऑफ सुरेंद्र शर्मा सर और सुरेश जकोटिया सर। अब ये मेरा स्टार प्रोडक्ट है मेरा कंपनी का। सो नसीह करने से इतना अच्छा सा ओवुलेशन स्टिमुलेट होता है, रप्चर होती है। जब फॉर्म ही नहीं हो रहा है, जब आप देख रहे हैं कि ग्रोथ इटसेल्फ इज नॉट देयर, तब आई हैव सीन वेरी सिंपल थिंग्स। सद्यो रसायन जो बोलते हैं, आई आस्क माय पेशेंट्स टू टेक 1 टीस्पून ऑफ मिल्क विथ 1 or 2 pinches ऑफ पेपर पाउडर। इमीडिएटली उनका नेक्स्ट स्कैनिंग में एंडोमेट्रियम भी बढ़ती है और एग का साइज भी बढ़ता है। ये मेरा बहुत सारे रिपोर्ट्स है। और सिंपल का तिल का नसी अभी वो इंडिया साइज ऑफ एग को बढ़ाती है। मर्म चिकित्सा, ये आई हैव स्टार्टेड डूइंग मर्म चिकित्सा आफ्टर मीटिंग डॉक्टर गीता जायसवाल, शी इज माय पार्टनर इन द हॉस्पिटल। इतना अच्छा सा रिजल्ट आ रही है, स्पेशली इन अनोवुलेशन। ओके, सिद्धा डॉक्टर्स से भी मैंने सीखा था, जो फ्यू पॉइंट्स जो स्टिमुलेट करते हैं वो सब। सो मर्म चिकित्सा भी इज हैविंग वेरी गुड रिजल्ट इन अनोवुलेशन। So coming to Marma points, 1 second. Yeah, I'll just you can see me, right? Hope you all can see me. Varudal is in Tamil, it's called as very light feather touch, like this only. Okay, so this we have seen, this is from Siddha. From umbilicus to mons pubis, ऐसा 3 fingers से ऐसा varudal करने से, if the egg is developed, rupture नहीं हो रहा है तो अच्छा सा rupture हो रहा है, ये हमने देखा है। सिंपसिस, प्यूबिक सिंपसिस के ऊपर बोनी प्रोमिनेंस जो है उसके ऊपर ऐसा अंदर प्रेशर देने से 3 times we are seeing that there's a very good stimulation. 3 fingers above the umbilicus, 4 fingers below the umbilicus also, midpoint में आप प्रेशर देने से, ये विद्ध कर्म नहीं है, ओनली स्टिमुलेशन विथ प्रेशर मर्मा पॉइंट्स का, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। Anterior, this is again I learned from Dr. Geeta. We are seeing very good result with the Viddha Karma, where we do from anterior superior iliac spine to symphysis pubis. Lateral 1/3 में विद्ध कर्म करने से ओवुलेशन हो रही है। आज्ञा चक्र, Stapani Marma and Apanga and Kaninaka both. Here we do here and just behind the ears here. These points we do, this is having, and Shankamarma. These are having very good result. And medial side of ankle से 3 fingers above pressure देने से भी ovulation अच्छी तरह हो रही है। So only without medicines, only मर्म चिकित्सा करने से भी ovulation हो रही है, ये भी हमने बहुत सारे cases में देखा। So how to deal with PCOS? If pregnancy is not being planned, bleeding के बाद अग्नि देख के रस प्रीणन, क्योंकि एंडोमेट्रियम अच्छा सा डेवलप होना है, रस प्रीणन और वातानुलोमन करते हैं। सेकेंड हाफ ऑफ साइकिल में उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यास देते हैं, ऐसा द्रोण पुष्पिका, वो पित्त सार चिकित्सा है, पित्त सरन करता है, लेखना और वातानुलोमन करते हैं। इफ प्रेगनेंसी इज प्लान्ड, देन ब्लीडिंग के बाद रसप्रीणन वातानुलोमन ही करते हैं। कफवातहर चिकित्सा मिडिल ऑफ द साइकिल में ओवुलेशन स्टिमुलेट करते हैं। फिर नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द साइकिल जस्ट वात को नॉर्मल सी में वातानुलोमन में अच्छा सा रखते हैं। सो दिस व्हाट वी जनरली डू। देन कमिंग टू शोधना, nowadays PCOS are becoming stubborn, so पंचकर्म करना ही पड़ रहा है। बहुत सारे केसेस में उतना अच्छा सा रिजल्ट भी आ रहे हैं। वमना इज द बेस्ट ऑप्शन टू डू इन PCOS। व्हेन यू सी मेनोरेजिया, बहुत हेवी ब्लीडिंग है तो विरेचन करते हैं, क्योंकि पित्त का इन्वॉल्वमेंट है।
Vasti is my favorite. I generally give Lekhan Vasti, Yoga Vasti या काल Vasti में. So generally मैं योग वस्ती देती हूँ. I have observed when I was a HOD and professor in SDM college. उधर एक पेशेंट थे, उनका काल वस्ती करने से एग रिलीज होता है. ऐसा so we will fit काल वस्ती in 8 days and somehow do before ovulation. So ऐसा भी केसेस थे जो वस्ती से ही it was having a result. So then Nasya Pratimarsh Nasya with MD4 तैल देते हैं to stimulate the ovulation. उत्तरवस्ती is having wonderful result. नारायण तैल से बहुत अच्छा है, फलग्रुत से बहुत अच्छा है. MD4 if PCOS का ओवेरियन वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है तो MD4, नहीं तो वो थोड़ा उष्ण होता है तो यूज नहीं करते हैं. So generally we give either फलग्रुता और नारायण तैल. In ovarian volume, excess ovarian volume, we give MD4 का उत्तरवस्ती देते हैं. So generally हम जो PCOS में या infertility में या generally infertility जैसा chapter तो नहीं है आयुर्वेदिक में. So जो भी हम पढ़ते हैं, जब whenever we are getting a reference saying periods के बाद 3 दिन के लिए देना, 5 दिन के लिए देना, नहीं तो 7 दिन के लिए देना, what does it mean? वो mean करता है कि वो it will stimulate the ovulation. This is what our understanding is. Example, Gokshura Churna with Nirgundi Kashaya. Nirgundi Kashaya is very much used in Siddha also. Gokshura Churna with Nirgundi Kashaya देने से PCOS में बहुत अच्छा result है. और for 3 to 7 days if you are giving, the female also ovulates well. Okay. And medicines such as Deepana Pachana, which is acting on Amashaya, which is correcting the Akhar Rasa, ये सब बहुत important है हमारा endometrial thickness और ovulation के लिए. So generally Ahara Vivechan, Manda, Yusha, Supa, Vyoshadi Saktu, Kadira Kanjika, this Kadira Kanjika, Kadira Laja Kanjika is from Sahasra Yogam, Rukshanayavagu from Charaka, Shamaka, Kodrava, these all helps in weight management as well as PCOS management. Only thing is Shamaka, Kodrava use करने से आपको एक बार जरूर पेशेंट से पूछना है कि बहुत वात वृद्धि या बहुत ड्राइनेस नहीं हो रही है कि नहीं. That we have to ensure. There are many patients who complain of severe dryness when they are using Codomilet. So coming to Vihara Vivechan, Brahmari Pranayama, Kapalabhati, Pavana Muktasana, Surya Namaskara, jogging, extremely helpful. Then Udanavat, Udvartana, Nasya, ये सब हम अच्छा सा advise करेंगे. Shrama, exercise करना ही पड़ेगा. So that Abraka Basma, especially Sahasraputi, Swarna Basma, Rajata Basma, Trivanga Basma, Tamra Basma, Kasi Basma, Pravali Pishti, all these are useful in PCOS based on different conditions. We have to understand early intervention or educating karne se hi, Dinacharya, Rutucharya, especially Rutucharya, Rajasvanacharya, you have to follow. So ye karne se, maybe eventually we will conquer PCOS. So Ritu Shodhana regularly and Achar Rasayana, SFB, we have to educate the patients. Then coming to success stories, few cases I will tell along with medicines. So this one case when I was working in SDM, 6 years marriage marriage का 3 years naturally conception हुआ था मगर spontaneous abortions हो रही थी around 20 weeks. Later she developed a PCOS. Torch profile का positive है. IgM IgM positive था. So oral medication or 1 cycle of Utravasti देने से patient has conceived. This is the patient case sheet. Sukumaram Kashayam बस उतना ही दिया है. Sukumaram Kashayam MD4 Sukumaram Kashayam Dhanvantram Gutika or Utravasti with Narayana Taila. That's all we have given. ये और एक patient है, again simple. See, why I am specifying this is only oral medicine or only 1 month से. ये देखे तो patient का 24th, actually if you see the LMP, 24th नहीं 26th day rupture होके उसी month the patient has conceived. So ये भी doctors ने जब scanning लेने के लिए गए थे, they said no development नहीं है, आप stop कर दो करके. But I generally ask the patient to go till we know what is happening. So इधर से हमने medicines चालू किया था, नसें चालू किया था, और by 18th day, 20th day, it started developing nicely, and she has rupture.
एंडोमेट्रियम भी बहुत अच्छा, ट्रिपल लाइन का एंडोमेट्रियम भी मिल रहा था, वो भी सेम सिंपल मेडिसिन, सुकुमारम कषायम, दानवंतर गुटिका, नसी विथ MD4. ये एक और केस है, मैरिड फॉर 2 years, PCOS, अनोवुलेटरी साइकिल्स था, इंटरनली ओनली स्त्रीहिता और नसीयम विथ MD4 दिए थे. दिस डॉक्टर, सो शी वाज वेरी मच कंसर्न्ड, क्या है मैडम मेरा ओवुलेशन नहीं हो रही है करके. So within 2 cycles, the patient has conceived. So these are all very simple cases. Stubborn cases भी देखते हैं. ये right ovary before treatment 3.9 into 2.8, 3.8 centimeter का था, 22.5 cc volume है. Why we have to worry about the volume? Volume 10 cc से जब ovaries में बच जाता है, तब ovaries respond करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. So 22 cc volume, we have to be worried because that will cause lots of internal damage. So after treatment ये 3.3 और 1.7 2.8 centimeter का हो गया था और 8.4 cc volume हो गया था. And started this patient, we had a very strict diet. इतना जंक खाती थी, so we have stopped everything. Their parents also have cooperated very well. Walking, yoga, ये सब शुरू करके only स्त्रीहिता was the only because she was a college going girl. So only one medicine was given. This is the result you can see. जब भी हम डिस्मेनोरिया या उदावर्तनी देखते हैं, जनरली आई गो फॉर सुकुमारम एंड दानवंतरम और मात्रावस्थी. But this patient conceived in 1 month. We were planning to do Vasti, but this patient conceived in 1 month with only Sukumaram, Kashayam and Dhanvantaram Gutika, nothing else. Okay, so again, I'm just, this I will see. This again, PCOS ka acne, her cycles were very good, no other issue. So only acne ka problem tha. मृदु विरेचन दिए थे, बस कुछ और नहीं दिए थे. Within 15 days, the skin is totally cleared. ये सब old marks है, नया कुछ भी नहीं आया था. So this again, one more patient recently, she is from media. Again, PCOS with very, very bad acne. So बहुत makeup डालना पड़ता था उसको TV के सामने आने के लिए. Same, very, very regular medicines. विरेचन दिए थे. Immediately there is a very good result. This is something which I have told only nasi se anovulation में only nasi देने में इसका ovulation within 20th day. If you see 12th day no dominant follicle, 14th day भी उतना बड़ा नहीं है. From 16th day she started and then had a very good ovulation. This is one case of doctor where doctor was in another city. So she was taking ovulation stimulation from allopathic medicines with no results. Only Marma stimulation I taught her through online, and of course she is also from Tamil Nadu, so she also knows lots of Marma. That very cycle she ovulated. Only with Marma Chikitsa, no other internal medication. Okay. So this also same Marma Chikitsa ovulation. No other internal much of her medicines. So why I'm telling this is many a times we think that बहुत complicated है, but there are many things which we are not doing. Small changes like diet change, lifestyle change, मर्म चिकित्सा इतना use हो रही है कि without much medicines also we are able to tackle this. This is with PCOS. Then we will fibroids again is one of my very favorite topic because we see very good results in fibroid. So that becomes favorite. This very important one is what are the investigations that we do in fibroid? USG is enough if it's a simple fibroid. But if you are seeing very big fibroid, USG with color Doppler is very, very important. MRI in some cases to differentiate adenomyosis and small fibroids. Saline infusion sonography भी करते हैं if at all we have a doubt that उसका endometrium में बहुत pressure हो रही है कि नहीं, वो देखने के लिए saline infusion sonography भी करते हैं. Of course hysteroscopy, laparoscopy we don't advise. Their FIGO classification है, I'm not going into details. What do we understand? कफ मेदोहर चिकित्सा करते हैं,
उष्ण तीक्ष्ण और लेखनीय चिकित्सा करते हैं। अनुलोमन कंपलसरी करना है। इसका इन्वॉल्वमेंट we see that it is kapha, mamsa, medas and vata. So all these are involved. So Lekhanavasti or Uttaravasti has got excellent result in fibroids. We see minimum 2-3 centimeters reduction within 8 days of Vasti. So we generally go for Varnadi Kashaya or Asanadi Kashaya, Triphala Kashaya, Yeranda Taila Vidyavakshara or Kalyana Kshara we give. We also go for Gomutra Haritaki, Triphala Gugulu, Strihita, this also we give. We have very, my prescription is very simple. In most of the fibroid cases, my prescription will be, if bleeding is involved, Pushyana Churna, Abrakabasma, Vaikranta Basma, along with Pravala Pishti, or based on the condition, Pradrantakras, something like Godanti Basma, based on the, if bleeding is there or not. Excellent result with Abrakabasma, Shataputi Abrakabasma and Vaikranta Basma. So this, my regular prescription has a wonderful result in most of the cases. We give MD for Taila, Uttaravasti or Pichu. Many a times I give Uttaravasti and throughout the month I ask them to keep Pichu twice a day. So that the reduction, especially if you see, it's not only fibroid, the whole uterus is inflamed, the size is very big. If you give Pichu, the results are very good. Kshara Taila, especially in submucosal fibroid, you have to be a bit careful while using Kshara Taila. We see Virechana has a very good result. Lekhanavasti has a wonderful result. Uttaravasti, especially if you are dealing with fibroid and infertility, Uttaravasti means a lot. So coming to few cases, this was a case of before treatment. The uterus was 15.15 into 8 into 15 centimeter. That is, it has doubled in size with multiple fibroids, mild to moderate hydrourethronephrosis because of the pressure symptom. It is going and giving pressure on the urethral. So it is having hydrourethronephrosis. And after treatment, only one set of yoga vasti, 8 days vasti is given. Uterus became 11.9 into 8 into 8.6 centimeter. So that is the difference. This patient, basically, I was not very confident. The way I said, no, she is recently married and complication is there, pressure complication is there. मैंने बोला था नहीं आपको बच्चों भी होना है. You are very young. आप don't waste your time. बहुत बड़ा है, complications भी है. आप सर्जरी के लिए जाओ करके मैंने बोला था. But वो patient ने नहीं मैडम, some other patient, known patient has taken treatment. आपसे ही लेती हूँ करके इतना जिद्दी थी. मैंने मेरे स्टूडेंट से बोला था we'll give वस्ती, इतना तो रिडक्शन नहीं होगा, सो वो चली जाती है करके. That is what we discussed. इतना अच्छा रिजल्ट आया कि then I thought Ayurveda gives result. We have to just believe in it first of all. So you can see 17/3/2021 का रिपोर्ट है और 2/4/2021 का है. जब ये आई थी, ये स्कैनिंग के बाद आई थी, within 8 days of वस्ती इतना रिजल्ट है. Then there's another case, a 44 years female patient, history with depression and on antidepressants. ये एक डॉक्टर रघुनाथ सर करके हैदराबाद में है, सर ने रेफर किया था जब मैं बैंगलोर में थी. So multiple fibroids है. They were not looking for pregnancy. Why? They have consulted allopathic doctors. उन्होंने बताया कि donor egg लेके आपको IVF करते हैं करके. They were not interested. Husband was like, no, मेरा wife का health important है करके. So when they came, I was only treating for fibroid. I stopped antidepressants. हमारा SDM में म्यूजिक थेरेपी चलता है, so म्यूजिक थेरेपी दिलवाया था, इंटरनल मेडिसिन शुरू किया था. We have to appreciate the confidence of the patient. Antidepressants stop करना इतना easy नहीं है, but उतना confidence था क्योंकि उनके डॉक्टर ने रेफर करके भेजा था करके. The moment I told to stop, on that day itself she had stopped. She battled that symptoms, and then within 8 months, only 2 vastis was taken. Within 8 months she conceived. She was surprised. Even doctors, when she went for cesarean, they were like, with this uterus you conceived karke. So this is when she had grade 3 fatty liver, and then after that the liver also was okay. She is still in contact. She got a healthy female child. They are very happy. No other complaints of fibroid also still. So I'm treating her sister from Mumbai now. She is 46 years now. So that is the treatment.
So again, here also Lekhanavasti has given very good result. I'll share cases where we give Lekhanavasti. This is again 46-year-old female with heavy bleeding. After 2 months of internal medicine, I said, Vasti hi dena padega. They were postponing the treatment. I said, dena hi padega Vasti karke. Then uterus size was 12.3 into 11.2 into 9.1 centimeter, written in mm, before treatment on 12th October. It became 9.8 into 7.0 into 7.5 centimeter by, only one Yogavasti, 1811 May. So submucosal fibroid tha 8.3 into 7.2 into 6.9 ka. This has reduced to 6.5 into 4.9 into 6.7. Here, the main thing you have to understand, that submucosal fibroid hoti hai, when it is reducing, the size is reducing, it can go back into the uterine muscle, becoming an intramural also. That is what it has happened here. This is a result for that. Here also we have given very simple medicine. Vasa Guduchi Adi Kashaya, Pushyaraka Churna, Pradhanantakrasa, Vaikranta Basma, Abraka Basma ka Godanti Basma ka combination, or Lekhanavasti. After Vasti only we can see this result. Again, one more case here, heavy menstrual bleeding, heaviness of lower abdomen is seen. Again, uterus, this is a very recent case, 16.6 size uterus. It has reduced to 5.5. See the difference in only one Vasti. Only one Vasti from 16.6 into 6.7 into 6.8 centimeter to 5.5 into 3.1 into 4.2 centimeter. And this is before as 22/2/26 का report है, 9/3/2026 का report है. What do we do? My focus, especially for fibroid, I blindly believe and depend on Vasti and this combination that I have given. Most of my, even my staff in hospital, my receptionist has this by heart. And man, you don't change, you always give this no karke. So, because this is a time-tested formula, itna acha result hota hai. Then coming to time है तो मैं endometriosis करती हूँ, नहीं तो we'll stop here, sir. नहीं मैम कंटिन्यू करिए प्लीज कंटिन्यू करिए मैडम प्लीज. Coming to endometriosis, yes sir, thank you sir. I'll complete it faster. Endometriosis also now itna painful है. I have got cases where suicidal tendencies patients में बहुत होती है because the pain is excruciating pain. Especially adenomyotic pain is called as suicidal pain. So itna pain hoti hai. Other cases, very blessed people, some people don't have a symptom also. So these are the different sides we see of endometriosis. Endometriosis mein, especially endometriotic lesions mein, pervaginal and perspeculum examination plays a very important role because wo scanning mein nahi dikhta hai. Coming to symptoms, pain, especially excessive menstrual cramp. और एक important symptom है, pain increases every month. Every month वो बढ़ता जाता है. Painful urination, painful bowel movements, painful menstrual period. Whatever the uterus is involved, front, back, any movement there is a pain. Diarrhea or constipation sometimes, nausea, low back pain, abnormal or heavy menstrual flow will be there, infertility of course, severe pain during intercourse. There are many people who just have stopped having a sexual intercourse. Vaginal bleeding between the periods, that is, in between cycles also there will be spotting, excess tiredness because there is a constant pain. So this will be there. Why PV and PS is important? See, many cases this is some very classical. You can see the spots, this bluish specks that we see here. These spots, these denote, in scanning it will be normal. The patient has pain. You will see this especially in the findings. You will see bluish specks. When you do a pervaginal examination, you feel that in the pouch of Douglas, you will find some nodes. It will not be seen in scan. Only PVPS you can understand this. So this is very, very important. Bluish powder burn lesion is what we see. Bimanual examination reveals nodularity in pouch of Douglas. Fixed retroverted uterus will be there. Unilateral or bilateral adnexial mass will be there based on the condition. CA125 is generally followed nowadays. We do CA125. It is generally elevated in all
though it is a cancer marker, in all pelvic area lesions, it is generally elevated. It doesn't indicate that there is a cancer. It just indicates that there is a inflammatory change. MRI is the best diagnostic tool. Laparoscopy is the gold standard. Latest diagnostics tools, if you see, आप सब लोग आजकल जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं वो लोग रोमा टेस्ट लेके आते हैं, रोमा values. You have to know what it is because there are lots of development which is happening. So HE4 करके एक नया epididymis का protein HE4 human epididymis protein है. ये blood test is generally, it is not elevated in endometriosis. Only in cancer it is elevated. आप CA125 लेते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि वो कैंसर है या endometriosis है. मगर HE4 क्या करती है, हम we have to take CA125 also and HE4 also. So HE4 normal है, CA125 elevated है, so we understand it is only endometriosis, not cancer. Okay, so risk of ovarian malignancy algorithm करके रोमा टेस्ट बोलते हैं. बहुत सारे पेशेंट्स, why I'm stressing this is, मुझे भी नहीं पता था, एक पेशेंट ने रिपोर्ट लेके आया तो मैंने पढ़ा था. So that's why I'm telling you. So ये बहुत अच्छा रिपोर्ट है. You can nowadays you are getting it, you can get it. ये सब जनरली if you go for other countries से पेशेंट आ रहे हैं तो वो लोग ये रिपोर्ट्स भी लेके आ सकते हैं. प्रो मार्कर एंडो ये सब इंडिया में अभी तक नहीं आया है. जिग्विस एंडो टेस्ट, ये सलाइवा से एंडोमेट्रियोसिस ही के नहीं, ओनली विद सलाइवा, नॉट इवन सम इन्वेसिव प्रोसीजर, वो पता चलता है. एंडो सर्च ये भी एंडोमेट्रियोसिस में नॉन इन्वेसिव टेस्ट है. एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कुछ भी है एंडोमेट्रियोटिक लीशंस है, वो EVG करके एक टेस्ट है, वो पता चलता है. We see that there are 4 stages, especially the staging depends on lesion size and depth of infiltration. So sometimes there will some sound is come. We see that there are few lesions, but the depth is there. The depth will give lots of pain. So endometriosis में infiltration करके बोलते हैं, adhesions बोलते हैं. ये जब ज्यादा होता है तो पेन बहुत ज्यादा होती है क्योंकि मूवमेंट कम हो जाता है. सो ये भी टेक्स्ट बुक में मिल जाता है. स्टेज 1, 2, 3, 4. एडिनोमायोसिस ओनली यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियोसिस जब होती है वो एडिनोमायोसिस होती है. ऐसा डिफ्यूज भी होती है, नहीं तो लोकलाइज्ड ऐसा भी होता है. उसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर सिम्टम्स है, बट 50% ऑफ द वुमेन आर एसिम्प्टोमेटिक. बहुत लकी पेशेंट्स है वो. बट अगर किसी ने अपना मोबाइल ऑन कर रखा है उसको प्लीज स्विच बंद कर दें. मगर किसी लोगों को पेन इतना सीवियर होता है. हेलो, हाँ मैडम, कंटिन्यू करिए मैडम. जी जी. It leads to anxiety, depression and suicidal thoughts. Okay, we see that many cases I have seen when there is repeat childbirth, repeat vigorous curate अच्छा नहीं करने से भी 90% of the women. I had a patient from Australia, ये मेरा cousin का friend थी. So she came all the way to Bangalore. इतना she was very normal. 1 महीने में बहुत heavy bleeding हुआ था, उन्होंने DNC करवाया था. उसके नेक्स्ट साइकिल से पेन होता है और इतना एक्सटेंट है कि उधर जनरली यू कैन डायरेक्टली गो एंड एंटर इनटू हॉस्पिटल, राइट. उधर जाके आईसीयू में एडमिट होना है एवरी मंथ. सो उतना पेनफुल पीरियड्स था. सो पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस कोएग्जिस्ट इन 40% ऑफ द केसेस. एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस कोएग्जिस्ट होता है. जनरली अपर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हाइपोगैस्ट्रिक मास पेल्विक फ्लोर से हमको दिखने के लिए मिलता है. वी कैन सी दैट द साइज इज मोर. It does not exceed 14 weeks generally. Or uniform enlargement sometimes, especially with the diffuse endometriosis, we see ultrasound, especially 3D ultrasound, color Doppler from transvaginal sonography is very important. You will know what it is. No, either it is because जब भी adenomyosis होती है, small seedling fibroid जैसा ही दिखती है.
सो एडिनोमायोसिस को जब हम ट्रीट करते हैं, जब वो स्लोली इट इज कमिंग डाउन, आपको स्कैनिंग में सीडलिंग फाइब्रॉइड करके लिख के देते हैं, क्योंकि ऐसा ही दिखता है वो। ओके, एमआरआई और यूएसजी भी करते हैं। Then coming to endometriosis and adenomyosis, udavartana of vata has to be corrected. No other go. Nowadays we see that जो लेडीज मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हैं, उनको भी बहुत सारा केसेस में एंडोमेट्रियोसिस फ्लेयर्स हो रही है। सो मे बी साइंटिफिकल पब्लिश तो नहीं है हमारा ये, तो क्लिनिशियंस बहुत सारे डॉक्टर्स भी ये बोल रहे हैं कि उनको भी उनके प्रैक्टिस में दिखने के लिए मिलता है करके। साम पित्त लक्षणास आर देयर, so we have to give tikta pachana, anulomana, lekana. This has to be done. Generally we use tiktakam kashayam, gugulu tiktakam, my favorite in all those cases, MD4 thaila capsule, kaishora gugulu and gandhaka rasayana. These all help a lot. Pain utna, especially tender uterus jo hoti hai adenomyosis se, kaishora gugulu se within few days there is a very good relief. At the same time, when there is a chronic pelvic pain, जो endometriosis का main symptom है chronic pelvic pain, just MD4 तैला से पिचू रखने से, just पिचू रखने से 1 or 2 days में totally off the medicines होते हैं। Effective भस्मास in endometriosis and adenomyosis, हम वैक्रांत भस्म यूज करते हैं, त्रिवंग भस्म यूज करते हैं, अब शतपुटी अभ्रक भस्म और स्वर्ण भस्म यूज करते हैं। Coming to पंचकर्मा, विरेचना has a wonderful result. क्षीरवस्ती, if you are seeing a flare अब भी है, सिम्टम्स बहुत ज्यादा है, तो फ्लेयर का सिचुएशन में अब भी शुरू हो रहा है, ऐसा सिचुएशंस में वेरी बैड थिंग इज उस सिचुएशन में हमें नहीं मिलता है, बहुत कम पेशेंट्स मिलते हैं, उधर क्षीरवस्ती बहुत अच्छा है। और नहीं तो लेखनवस्ती, जब यू आर फाइंडिंग अ anatomical change, लेखनवस्ती is something which will give a very good result. Coming to success cases, generally frozen pelvis, most of my talks I tell about this case because this was the first time after some 15-16 years experience, first time frozen pelvis मैंने देखा था। 4th degree endometriosis होती है मगर उतना कॉमन नहीं होता था, अभी तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा मिल रहा है, मगर जब मैं देखी थी दिस वाज माय फर्स्ट केस frozen pelvis. Whatever you read of वातला योनि व्यापत, क्लियरली वो सब सिम्टम्स मिल जाता है इस पे। सो ये इधर लिखा है फ्रोजन पेल्विस करके। पेशेंट का सिम्टम क्या था? नो मूवमेंट, दैट इज यूरिन में पेन है, मोशन जाने से पेन है, इंटरकोर्स तो टोटली बंद हुआ है। वो टीचर थी, शी रिजाइन करके ऑलवेज बेड रेस्ट में हॉट वाटर बैग रख के हर दिन 3 या 4 पेन किलर्स थ्रू ट्रांसरेक्टल एज वेल एज इंटरनल भी पेन किलर्स लेके, ये था उसका लाइफ। सो वो आए थे बेसिकली फॉर किड्स, इनफर्टिलिटी का केस था। इनफर्टिलिटी हम कुछ नहीं कर पाए मगर क्वालिटी ऑफ लाइफ 100% हमने इंप्रूव किया है। अभी भी आफ्टर ऑलमोस्ट 8 to 10 years द पेशेंट इज स्टिल इन कॉन्टैक्ट। शी इज वर्किंग एज अ टीचर और काउंसलिंग कर रही है, बच्चों से है, सो शी इज रियली रिलीव्ड। बट क्वालिटी ऑफ लाइफ जो भी टोटली पेन किलर्स में था वो सभी नॉर्मल हो गया था अगेन विथ वस्ती। ये रिजल्ट था उसका एमआरआई एब्डोमेन में, फैटी लिवर। सो सेम इसमें द मोमेंट वी स्टार्टेड विथ वस्ती, फर्स्ट CA 125 100 के अबव रेस था। गुगलू तिक्तकम कषायम और कैशोर गुगलू दिए थे। सो विद इन 15 days the CA 125 became half, that is around 45-50 हो गया था। उसके बाद बिकॉज वो साम पित्त लक्षण कम होना है, उसके बाद हमने वस्ती पंचकर्मा आफ्टर दैट ओनली वी कैन डू, उसके बाद वस्ती चालू किए थे। सो विद इन फर्स्ट डे ऑफ वस्ती, सेकेंड डे ऑफ वस्ती इटसेल्फ द पेन रिलीफ वाज देयर। सो पेशेंट का ब्रदर एलोपैथिक डॉक्टर है, सो उनका डाउट था कि हम कुछ वी आर नॉट यूजिंग एनी स्टीरॉइड्स एंड ऑल, मगर बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था पेशेंट को। within 6 to 8 months there is a total relief. जब ये पेशेंट आई थी, we read no in वातला कर्कशता, स्वनम, all these things were there. एक भी फिंगर से हम परवेजरल एग्जामिनेशन नहीं कर पाए थे। रफ इतना रफ था कि एक सीमेंट के वॉल को ऐसा रब कर रहे थे, इतना रफ था। विथिन 20-25 days वो नॉर्मलाइज हुआ था। वी कैन डू अ प्रॉपर pervaginal examination with 2 fingers. Within 2 months, she started having normal sexual life.
पेन किलर में नहीं थी, एवरीथिंग. नाउ शी इज अगेन वर्किंग एज टीचर. दैट्स हर फेवरेट, यू नो. So इसमें गुगलू तिक्तकम कषायम, पुष्यानक चूर्णम with वैक्रांत भस्मा and अब्रक भस्मा. some days जब फ्लेयर थे तब मैंने स्वर्ण भस्म भी ऐड किया था, मगर जनरली आई कीप ओनली टू दिस. और लेखन वस्ती वी वर गिविंग कंटिन्यूअसली. एक विरेचन होने के बाद 2-3 cycles का लेखन वस्ती दिए थे हम. So that is the result. Then coming to adenomyosis, this one case where extreme pain was there. Within one vasti, there is a remission. You know, features of myohypoplasia, adenomyosis in remission. That is, it is coming down. Same in anything. For example, in fibroid, when we are giving Ushna Dikshna Chikitsa, here in endometriosis, we give a little bit of Pittahara Chikitsa. So, Sama Pitta, we give Tikta Pachana, whereas in PCOS and fibroids, we give Katu Pachana. So, here we have given Guglu Tiktakam mainly. This is one wonderful case. Again, this I'll tell in most of my talks. Yeah, this is one of my favorite cases, which has given me a huge belief that we can do wonders in endometriosis. Endometriosis tha, you know, only with the normal pichu or MD4 capsules, MD4 का क्वाता चूर्ण था, sorry, मुंडी का क्वाता चूर्ण पीने के लिए दिए थे. If you can see, itna bada right ovary, you know, from behind the uterus, it goes and pushes the left ovary. Itna tha, ek hi mahina mein, this patient has conceived, and see the ovaries, both are normal. So sometimes it is only, see, if you tell infertility you have treated, we are the biggest fools. God has given, but through us, that's all. But this gives a lots of belief that we can do. Same again, one more endometriosis case hai, where 176, itna bada, 176 cc ka, you know, endometriotic cyst tha. She went on to 6-7 months हुए थे, went on to have a normal delivery also. While she conceived, she had around 100 cc of fluid, endometriotic cyst. By delivery, she had 60 ml. So now she is totally all right. She is blessed with a female child. Again, another endometriotic, this one, right endometrioma, again that is reduced. Again, within very, very short span of time, 2023, and here in April. So these are few cases. Yeah, this one I want to show. This is again HE4 Roma. This is there. You can see this. So both CA 125. This is from a patient from US. So that's the first time I saw, okay, this is what they are giving karke. Then I started doing some research on that. This her report. It's not about before, after, but only to understand I have kept it. So this is with endometriosis. And I request, you know, all of you to help me out. I have started a small Ayurvedic pharmaceutical company out of lots of love. Mera medicines jo bhi hai, itne saal se, you know, in patients we have used, especially Strihita is one of my favorite product, has a very good result in improving fertility. It improves egg quality. It is very good in PCOS, very good in pre-conceptional care we give. So this is Strihita. This has Shatavari, Shatapushpa, Trivanga Basma, Naga Kesara, Trikatu. So all in one it will work. Little Ushna bhi hai. This MD4 is all thanks to Surendra Sharma sir. Mundi we started using, then I felt it's a little Ushna ho rahi hai, especially Pitta Prakriti mein, endometriosis mein, adenomyosis mein. तो थोड़ा सा धान्य का ऐड करके MD4 तैला करके बनाया है. सेम सॉफ्ट जेल कैप्सूल है. Has a very good result. Nasya has a very good result in endometriosis, anovulation, and also in thyroid issues. We use a lot in Vastis. Two PG thesis चल रही है ये medicine में. ये एक endometriosis के लिए और एक ovulation के लिए. ये Spermilate है, ये recently launched है, has a very good result to improve the quality and quantity of semen. लिबिडो और स्टैमिना भी इंक्रीज करती है. हमारे पीई और ईडी में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है. थायराइड इज अगेन समथिंग which is very helpful in both hypo as well as hyperthyroidism. It regulates the thyroid function. It normalizes hormonal imbalance. So having very good result.
the doctors who are using have been giving very good support. So I really request you all to please try my medicines. This is Ortihita. Actually, I formulated this for one of my cousin's daughter who is in Australia. So जब यूज किया था इतना रिजल्ट आया था कि वो स्कूल में पूछने लगे थे क्या दे रहे हैं इतना रिजल्ट आ रहा है करके. So that's when I understood we can do, started giving to so many people. वो पोटलम करके बोलते हैं ना, स्मॉल व्हाइट पेपर में फोल्ड करके देती थी. Then one doctor, Dr. Sudhir sir from Shri Shri Ayurveda College, sir told ऐसे देने से फॉरेन में नहीं बेच सकते हैं मैम, आप लाइसेंस ले लीजिए करके. तब जाके मैंने लाइसेंस लेके ऑटिटा बनाया था. Has a very good result in ADHD, autism, OCD, stress related memory loss, depression, postpartum depression. ये सब में बहुत अच्छा सा काम कर रही है. इसके अलावा जो भी हम हॉस्पिटल में पर्सनल यूज के लिए प्रिपेयर करते हैं, पुष्यानगर चूर्णा, एज आई टोल्ड यू, रिजल्ट ही नहीं आ रहा था. सो मैंने सोचा हम भी क्यों नहीं बनाए करके. सो वी कलेक्ट सम 400 लोटस फ्लावर्स, वी कलेक्ट मैंगो सीड्स. बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि मैंगो सीड्स जल्दी फंगस आ जाता है. सो प्रिजर्व करके पाउडर करके पुष्यानगर चूर्णा जब हम बनाए थे इतना अच्छा रिजल्ट था. देयर आर डॉक्टर्स हु टेक 3 kg 5 kg लाइक दैट. सो द रिजल्ट्स आर वेरी गुड. Then ये शतावरी अश्वगंधा घृत करके, this I use in anovulation, infertility, male and female fertility, has a very good result. And then there is a reference from Charka Samhita called Udumbra Shalatu Taila. This we give, has a very good result in first degree and second degree uterine prolapse. So especially cystocele, जब भी कॉफ करते हैं थोड़ा यूरिन आ जाता है, जब भी स्नीज करते हैं थोड़ा यूरिन आ जाता है, vaginal looseness hoti hai, they cannot control the urine. In some may we have a very good result with the Udumbra Shalatu Tailam. We also use Lajjalu Kalka. Lajjalu Kalka सभी टाइम में नहीं मिलता है, तो हम Udumbra Shalatu Taila, ये चरक समिता का रेफरेंस है, इसने this having a very good result. Then various कषाय चूर्ण भी हम करते हैं. Palchasakara चूर्ण, this also we do. Thanks to Koti Nagarjuna sir, we are doing Siddhamrita Yoga, has a very good result in bleeding. Chavanprash bhi karte hai every season. Kumkumadi Taila karte hai, Ashtachurna, Ajamodai Churna, all these we do. We are trying to make sure whatever we are using to our patients, how much ever possible from our side, we try to do those medicines. रसशास्त्र में इतना अभी तक नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा पुट जा रहा है, like few बसमास चल रही है, मगर ये कासौश में सब करते हैं. We also have this our hospital. It's a NABH accredited 15-bedded hospital in Bangalore. So we have a small institute also, accredited institute. We give diploma courses, in diploma in Ayurvedic gynecology and obstetrics, and a diploma in Panchakarma also for enthusiastic doctors who want to learn. In those we also give that. So this is about me and what we do. Thanks a lot. It was wonderful talking to you people. आप लोग बहुत सीनियर लोग हैं. ये opportunity मिलना ही मुझे इतना खुश दे रही है कि I could talk in front of you people. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you very much, Pushkala Vadrinayan ji. It has been a wonderful experience today to engage you in this program today. And no doubt you have a very vast experience, and your exposure has been will be very beneficial to all the stakeholders whosoever is present in this program. Since when you started, you said that you were not feeling good today, but it is a self-propelled motivation that you kept on with full energy, and we never felt that you were suffering from some sort of issues. But it is the motivation, self energy. It is which comes from inside, and that really it has been a wonderful experience today. मैं सभी अपने साथियों से आग्रह करूंगा, यदि किसी के कोई प्रश्न हो तो वो आज पूछ सकते हैं. हमारे बीच में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, चिकित्सक भी मौजूद हैं जिनके बहुत सारे अच्छे अनुभव हैं. वो अगर कोई अपना उनका क्वेरी है वो हैंड रेज कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं.
Hello, Yes. Namaste. sir. Good evening. Please, Yeah, good evening. please introduce yourself, sir, please. Sir, I am Dr. Mohan from Hyderabad, sir. PG scholar from Yeah. Dr. B.R. Government Ayurvedic College. Good, Sir, good, good. I have Please, a doubt, please. sir. Yeah, Ma'am, please can you raise your please question. tell the reference of like kapha in Majja, like presents as Angagauravam or Ashtanga increased Sangraha, sir. Dakshineha, ma'am? Ashtanga Sangraha reference, sir. Kafadushti in various dhatus is given. Okay, okay. Ashtanga Sangraha, sir. Sutrasthana. No. I don't Yeah, remember okay, ma'am. chapter, sir. Okay, ma'am. So, yeah. Ma'am, another thing, ma'am, in Sama Pitta condition, like you are telling to start Pitta Pachana. Yes, sir. So, like, what is the reference, ma'am, for that also? Sir, Jwara? Jwara, ma'am. Yes, sir. We give Pitta Pachana only, no Guduchi, like that only we'll start, no, sir. We don't Okay, give okay. Katu Pachana like, what to say, Trikatu, या चित्रक ऐसे नहीं देते हैं ना सर. We always go for a Samapitta चिकित्सा. So Tikta Pachana ही देते हैं उसमें. Wherever blood, hemorrhagic cyst, endometriotic cyst. Okay. So Okay, okay. इसमें सर हम Tikta Pachana देते हैं सर. Okay, ma'am. Thank you. Anybody else who has any query, कोई और पूछना चाहता है, प्लीज अनम्यूट करें और क्वेश्चन रेज कर सकते हैं अपना. या फिर आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो you can put down in the chat box. You can raise your query in the chat box as well. गुड इवनिंग राकेश जी. जी अरुण राठी जी नमस्कार. अकोला से अरुण राठी जी बोल रहे हैं. नमस्कार, धन्यवाद जुड़ने के लिए. Thanks a lot to madam. I will request madam to change one thing. Sir. That is now PCOD or PCOS has been changed with the new name. Yes, sir. Yes, sir. PMOS. Yes, sir. Polyendocrine metabolic ovarian syndrome. Yes, sir. Very true, sir. Very true, sir. I missed this point, sir. It has happened just only 1 month before. Yes, yes, sir. Yes, sir. Forgot to update. Anybody? Surendra ji Sharma means Dr. Surendra Sharma from Hyderabad. Yes, sir. Sir is also here. I'm so happy that sir is here. या मेरे भी गुरुवर है वो, उनका काफी रिलेशन है अकोला में. Oh, very, very नमस्कार जी. नमस्कार. पुष्कल छोटी सी एडवाइस है, तुम्हारा एम्प्टी टोन है ना ऑयल. Yes, sir. You can try even preventing gray hairs in the girls. I'm I'll getting use good it. result with that. Yes, sir. Yes, sir. I'll try, sir. Hmm? Nasi hai na, sir? No, Nasya, only Nasya. Yes, sir. Yes, sir. It is giving excellent result. Yes, sir. Definitely, I'll try, sir. Good evening, sir. I have a doubt, sir. Introduce yourself, please. I'm Tanmay from Dr. B.R. Government Ayurvedic College, sir, PG first year. Yeah, yes. Good evening, ma'am. Good In evening. endometriosis, we took the reference to be Samapitta condition, no, ma'am. Yes. After doing Tikta Pachana, why do we have to do Virechana or Vasti again, ma'am? If it is because of Sama Avastha, once Tikta Pachana is done, the disease should be cured, no, ma'am. Sir, whenever you see endometriosis, doctor, when you see the origin of it, it starts with the Vata Pitta Lakshanas. Okay, Then ma'am. it becomes Sama Pitta, then it becomes Tridoshaja. By the time you have a case, you see lots of adhesions, it's already Tridosha Vikara, where Kapha Vasta is also there. So in such conditions where anatomical change is already there, in such conditions, you will definitely have to go for a Lekhanavasti. Coming to Virechana, though Sama Pitta is cleared, that excessive amount of Pitta, whatever is there, Virechana, again, we are not giving Tikshna Virechana. We give Madhyama Virechana, Mrudu to Madhyama Virechana, which is good for both Vata as well as Pitta. So, what I have seen, if you are not giving a Vasti or if you are not giving a Virechana, at least Nitya Virechana, if we are not giving, they start to have the symptoms of heaviness of lower abdomen again. Now, currently, I'm treating one patient. She is 46, 47 years old, very, very active female. The only symptom is excessive bleeding and heaviness of lower abdomen.
I have been giving only internal medication. All her symptoms came down. Lower abdominal pain came down. Everything came down. But bleeding has not reduced. After Virechana, this month only we gave Virechana. Now she is in her 6th or 7th day of cycle. This time cycle was 80% better with one Virechana. So whatever said and done, those Shamana Ushadis have their own importance. We see that when you are giving a Shodhana, the results are very good. So in such conditions, when we see doctor, only internal medicines is not being alone is what is my observation, doctor. Okay, ma'am. Thank you. अरुण जी आपका माइक ऑफ कर लीजिएगा अरुण जी प्लीज. हाँ, anybody else who is raising? Dr. Kasturi? Hello. Good Yeah. evening, ma'am. Good evening. You Myself, have Kasturi. Yes, Uh, yes. I'm from Department of Dravya Guna, but actually my thesis is adenomyosis, in which I'm giving Himstra, Gridranaki, Moola, Kashaya tablets I'm giving, madam. Madam, actually that Himstra, it is having Vushnavirya, and then if we are giving it in adenomyosis, it will be having some type of scraping action. But here, how it will act, it is having Kapha Vatahara action, madam. But still, how it can act on stopping of Rakta? Can you please tell me that? Himsra I have not used, doctor, but Suresh Sharma sir is there. Sir also uses Tila. Okay. When I first heard this from sir, I was like arguing with sir. Sir, how can you use this? Then reference is there. You go and study karke. So reference are there like that. In some cases where we are finding that, especially adenomyosis, where in Mamsagata you are finding that Dushti, maybe this is acting by lekana of the Mamsa and Kapha excess kleda. That is what may be a action, doctor. Coming to Mundi, we see that the Yoni Shulahara is the Prabhava of Mundi. Whereas in Himsra, I don't know, doctor, I have to see and tell. So I will not be able to answer, properly judge the answer, doctor. Thank you, madam. Anybody else who wants to raise the question? Anybody else? यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं अभी. जी मैडम नमस्ते. Namaste. नमस्ते हैं जी मैडम. डॉक्टर हेमराज सेन. जी मैडम किशनगढ़ अजमेर से राजस्थान से बोल रहा हूँ मैडम. जी जी मैडम जी मैं 2-3 बातें पूछूंगा मैडम. केवल एक तो एमेनोरी के लिए आपने एक तो जो अर्क पुष्पी योग बताया था, तो अर्क पुष्पी योग को कौन से तेल में फ्राई करने के लिए कहा था आपने इससे? तिल तैला सर. तिल तेल में. जी मैडम. और कितनी मात्रा में जैसे अपन दे सकते हैं उसको? सर जनरली 1 to 3 पुष्प दे सकते हैं. Along with Guda, it comes to 3 grams, sir. We make it as 3 gram of Gudavati. We seal separately. Each 3 grams we seal separately and give, sir. So चिपक हो जाता है, sir. It will attach to each other. So we give it in like that, sir. तो कितने दिन पहले चालू करें मैडम इसको, जैसे मतलब एमेनोरिया का पेशेंट है तो 1 week before the next cycle we can start if they are not planning for pregnancy, sir. जी मैडम. एक मैडम द्रोण पुष्पी पत्र वाला भी योग बताया आपने. Yes, लिए sir. मैडम प्लीज वापस बताएं द्रोण पुष्पी का कैसे किया था आपने? Drona Pushpi, I have been using in so many patients. Many of my friends start growing Drona Pushpi in their pots also. Many of my patients too. Because the result is very good. Simple sa medicine. Medicine bhi nahi hai. We can say it's a food. 5 Drona Pushpi leaves 3 times per day. Kalk jaisa khana hai, sir. Bas. Either you give it like that or you can add them to pound 1 or 2 Raja Pravartini Vati and eat along with that, sir. जी मैडम. एक मिनट पूछ रहा था मैडम. एडियोमेट्रिस के ऐसे केसेस हैं, उसमें आपने कोई अनुभूत बस्ती के लिए बताया था. प्लीज इसमें कौन सी बस्ती उत्तम रहेगी? ऐसे थोड़ा सा एंडोमेट्रियोसिस में क्या हैवी ब्लीडिंग होती है और पेशेंट है वो तो मतलब जैसे आपने जो सारे सिम्टम्स बताए, बिल्कुल सारे पेशेंट सारे सिम्टम्स शोज हो रहे हैं उसमें. तो मैडम ये जैसे ब्लीडिंग होती है, पैनिक होता है, जो भी आपने सिम्टम बताए, इसके लिए मैडम प्लीज निवेदन है एक बार वापस बता दीजिएगा. एंडोमेट्रियोसिस केसेस सर में जनरली मैं जो यूज करती हूँ 2 तरह की वस्तु यूज करती हूँ सर. एक फाइब्रॉइड्स और पीसीओएस के लिए कॉमनली एक यूज करती हूँ. एंडोमेट्रियोसिस के लिए एक यूज करती हूँ. सो कमिंग टू फाइब्रॉइड्स एंड पीसीओएस, इधर असनादि कषाया नहीं तो त्रिफला कषाया और वर्णादि कषाया ऐसे लेके इसका बेस में आई जनरली ऐड कषाया. इफ एट ऑल हम 350 ml मैं अर्धमात्रा निरुखवस्ती ही देती हूँ. मैं फुल नहीं देती हूँ. जनरली टोटली 400-450 ml ही देती हूँ वस्ती.
सो इसमें हम क्या करते हैं, जब कषाय 1000 ml रखते हैं, उसमें 100 ग्राम का कषाय चूर्ण डाल देते हैं, 10 ग्राम्स का चिंचा टैमरिन डालते हैं, 10 ग्राम का लहसुन डालते हैं। सो ये बहुत अच्छा सा तीक्ष्ण हो जाता है सर। और कमिंग टू सम सेम lavana, honey, and coming to oil based on the condition, बहुत पित्त प्रकृति है और फाइब्रॉइड है तो वरनादि घृत प्लस MD4 तैला मिक्स करके देती हूँ, नहीं तो प्लेन MD4 का तैला मिक्स कर देती हूँ। कषाय ये जो बनाया है ये कषाय देती हूँ। कल्क के लिए either if possible I give sorry little अब्रकभस्मा, नहीं तो क्षार, यवक्षार जो बाहर मिलता है, आप वैद्य से लिए हैं तो अच्छा है, 1 ग्राम ही अच्छा होता है, नहीं तो 2-3 ग्राम्स का क्षार भी यूज करते हैं। दिस इज व्हाट आई गिव फॉर PCOS or fibroid sir. Coming to endometriosis, I change this into Dashamula Kwata and I don't add lots of Ushna Tikshna. Here I also add Gomutra based on the patient's conditions. मगर जब endometriosis का होता है, especially when endometriotic cyst is too big, मेरा एक केस मैंने दिखाया था 176 cc, इतना बड़ा cyst था, so उसमें विरेचन भी दे नहीं पाते हैं क्योंकि it will go into torsion, so we have to go only for वस्ती। so इस तरह जब होती है मैं दशमूल एरंडमूल ऐसा यूज करती हूँ, उसमें गोक्षुर ऐड करती हूँ, उसमें गुड़ूची और एसटीबी ऐड करती हूँ, जो कषाय प्रिपेयर करते हैं उसमें ऐड करते हैं। So coming to other ingredients are almost similar, only we don't add gomutra, we go on to add kshara also because वो लेखन होना ही पड़ेगा उधर। so ये ऐसा करते हैं सर। तो ये आप लेखन बस्ती के लिए बता रहे हैं मैडम, दसूल के साथ में? मैडम इसमें ऐसे पिचू धारण का भी कोई योग है क्या वैसे सर? पिचू धारण के लिए भी कोई योग है क्या मैडम, इसमें पिचू धारण करवाएं ऐसे या MD4 तैल से देती हूँ सर पिचू, थोड़ा उष्ण होता है, MD4 तैल से देते हैं, 2 hours रखने के लिए बोलते हैं। इफ साइज इज वेरी बिग, इफ ऐसा 16 सेंटीमीटर का यूट्रस ऐसा हो तो 2 times रखने के लिए बोलते हैं। I will ask them not to put in the night because भूल गए तो बहुत, but it will swell in the vaginal canal, it will be difficult to remove, so I will tell them to keep alarm for 2 hours and remove it, morning एक time और evening एक time बोलती हूँ सर। इसमें और भी थोड़ा, और if you are already she has done with kids हो गया है, they are not looking for family way, थोड़ा सा टंकन बस में ऊपर से लगा के आप पिचू लगा सकते हो, अच्छा सा रिजल्ट आता है उसमें भी। जी है ना, और भी कोई और जैसे MD4 के अलावा जैसे अपन बस कुछ है दूसरा उष्ण तैल you can give sir, I think what is that, plain mustard oil also can help sir। जी मैडम, but बहुत तीक्ष्ण होता है sir। yes, why I am using MD4 is directly if you read about Mundi, Yoni Shulagara is the prabhava of Gorakh Mundi, so we have a wonderful result, within 1-2 days the pain will come down sir। जी जी मैडम, ठीक है। थैंक यू। और बाबूलाल जी बराला कुछ पूछना चाहते हैं? बाबूलाल जी अनम्यूट करें। बाबूलाल बराला जी, बाबूलाल बराला जी अनम्यूट करें, आपने हैंड रेस किया है। हेलो बाबूलाल बराला जी, ठीक है। और कोई किसी का? हाँ बाबूलाल बराला जी आप पूछें कुछ, अनम्यूट करें अपने आप को। एक क्वेश्चन मैडम इसमें आया हुआ है, स्मॉल हाइपोप्लास्टिक यूट्रस, जिस इट हैज विजुअलाइज्ड यूट्रस मेजर्स 3.6 into 1.3 centimeters in size, what should be the treatment? जनरली क्या होता है, हाइपोप्लास्टिक यूट्रस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जब हाइपोप्लास्टिक यूट्रस एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर तक है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऐसा है, तो देयर इज अ मार्जिनल इंक्रीज इन साइज विथ शुद्ध बला तैला, सॉरी शतावरी अधिकृत एंड शुद्ध बला तैला। मगर जब इतना छोटा होता है, then there is not much of a visible result। okay, so what we can do, इसका प्रॉब्लम क्या हो सकती है,
हो सकती है कि वेजाइनल कैनाल भी स्मॉल है, तो नॉर्मल इंटरकोर्स नहीं हो पा रही है, वो हो सकता है। इनको कंजीव करना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है। सो कंसेप्शन के लिए तो नहीं देखेंगे, मगर अच्छा सा पीरियड्स आना है। इफ इट्स नॉट कमिंग, देन देयर हार्मोनल इम्बैलेंस विल कॉज लॉट्स ऑफ अदर इश्यूज फॉर देम। सो उनके उसके लिए हम ट्राई करेंगे। जनरली इतना सा हाइपोप्लास्टिक यूट्रस है तो ओवरीज भी स्ट्रिक गोनाड्स होने का चांसेस है। जब स्ट्रिक गोनाड्स होता है, बॉडी में ईस्ट्रोजन बहुत कम पड़ जाता है। So all the menopausal symptoms like arthritis, that, this, everything they'll start getting at a very young age. It will also affect their bones. Bone depletion हो जाती है, बहुत young age से हो जाती है। So उसका करेक्शन हमको जनरली इंटरनल मेडिसिन जो भी रसायन जैसा है, अश्वगंधा शतावरी घृत, नहीं तो जनरली एनी घृतपाना विल हेल्प इन प्रोटेक्टिंग दैट। उसके अलावा इंटरनली भी हम फूल का मखाना, नहीं तो what do you call this? Sorry, I'm not getting the name. फूल का मखाना जनरली हम देते हैं। So water chestnut सिंगाड़ा बहुत अच्छा काम करता है, उनका हार्मोनल लेवल मेंटेन करने में काम करता है। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो गिव मेडिसिन टू जस्ट टू मेंटेन हर पीरियड्स। सो ये इतना ही हम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते हैं इसमें। जी जी ठीक। बाबूलाल जी आप पूछना चाहते हैं? Sir has told about one medicine. If I'm not wrong, Piyushavali Ras sir देते हैं। I have taken for one of my case also. So वो भी बहुत अच्छा काम करता है। जी जी जी। बाबूलाल जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? बाबूलाल जी का अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो आलम अली खान साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मिस्टर आलम अली खान। हाँ जी सर, हाँ सर। चलिए जी, मैडम, जी, ये कुछ पीसीओडी के लिए कोई बेटर हो तो बता दीजिए सर। पीसीओडी रहता है जो ज्यादा लेडीज में पीसीओडी बहुत ज्यादा आ रहे हैं पीसीओडी। यस सर। जी सर PCOS जनरली हम देखें तो इफ द ओवेरियन वॉल्यूम इज मोर, उसका सेपरेट हम करेंगे कि वर्णाली कषाय या कांचनार गुगलू या शिवगुटिका ऐसा देंगे। अमेनोरिया है तो उनका डिफरेंट केस है, मेनोरेजिया है तो डिफरेंट है, अनोवुलेशन है तो डिफरेंट है। सो बेस्ड ऑन द कंडीशन, जब वो हमसे कंसल्टेशन के लिए, सॉरी माय हिंदी इज बैड, कंसल्टेशन के लिए जब भी आती है, what is the condition then, that is what we see and give sir. ठीक है। एक मैडम प्रश्न है कि नस्य के लिए MD4 आयल अपन देते हैं, उसकी जगह M2 टोन सिरप का भी यूज कर सकते हैं क्या? नहीं सर, एक्चुअली सर ने MD4 का ही बताया है, क्योंकि मुंडी तेल भी हम ग्रेइंग ऑफ हेयर्स के लिए यूज करते हैं, सर से मैंने सुना था। सो आई थिंक मिसस्पेल्ड एज M2 टोन, दैट्स ऑल। जी 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 ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न हो? एनीबडी एल्स जिसका प्रश्न हो? नहीं तो फिनिश की ओर बढ़ेंगे। मैडम इसके लिए मेट्रोरेजिया एक क्वेश्चन रह गया मैडम। मेट्रोरेजिया और ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए मैडम अभी से पलाश पुष्प का प्रयोग भी करते हैं मैडम, इसका अनुभूत है तो बताएं ना। केसुला हम कहते हैं इसको, जैसे पलाश है, इसके पुष्प का यूज। पलाश पुष्प मैंने यूज नहीं किया है, मेनी ऑफ माय सीनियर्स आर यूजिंग इट। पलाश पुष्प जो हमारे पास भी है, अच्छा क्वालिटी नहीं मिलता है जितना नॉर्थ में मिलता है, सो हम यूज नहीं करते हैं सर। बट मेनी ऑफ माय सीनियर्स हैव यूज्ड पलाश पुष्प सेपरेटली फॉर दिस वन। आई जनरली गो फॉर अशोक, इधर तो अच्छा मिल जाता है, सो अशोक क्षीर कषाय यूज करते हैं सर इधर। सो पलाश पुष्प जनरली व्हाट आई हैव हर्ड इज इधर एज क्वाथ चूर्ण यूज करते हैं, नहीं तो लेह जैसे भी लाइक हाउ वी डू गुलकंद, ऐसा भी बना के भी यूज करते हैं सर। नहीं मैडम, मेरा पूछने का मतलब ये है कि मैडम एमेनोरिया में तो इसको तो यूज करते हैं, मैंने भी किया, लेकिन मेट्रोरेजिया वाली कंडीशंस में भी उसको यूज कर सकते हैं क्या? मेट्रोरेजिया में बहुत अच्छा रिजल्ट आती है, क्योंकि वो पित्त शामक होता है सर। वी गेट अ वेरी गुड रिजल्ट इन मेट्रोरेजिया। जी मैडम, थैंक यू। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो ठीक है, नहीं तो अब अंतिम चरण की ओर बढ़ें। सर एक क्लैरिफिकेशन सर, अभी जो आप पूछ रहे थे ना, जी सर, रक्त में पलाश का बोल रहे थे ना, तो रक्त प्रदार में पलाश का जो गोंद रहता है ना, वो बहुत अच्छा काम करता है।
अच्छा जी उसको सर। कमर कस बोल के बोलते हैं, वो काम करता है। और पलाश का जो कौले कौले पत्ते रहते, वो उनका जी। पाउडर आप मेंसेस होने के बाद 10 दिन देने से ओवुलेशन में बहुत अच्छा काम करता है। इन्फर्टिलिटी में हम लोग बहुत यूज करते हो, हम लोग डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा भी यूज करते हैं, तो ये बहुत अच्छा जी। काम करता सर गोंद कैसे यूज करते हैं सर? है। हाँ? पलाश पुष्प। पलाश पुष्प का गोंद, गम गम Okay. गम How to गम use, sir? It is a powder you get How in the to use? market. It is called Kamar Kas. In the market, it is available as Kamar Kas. It's a Oh, yes, red sir. color gum will be there. That powder you Okay, have to sir. give. Immediately, it is having astringent effect and it's Raktapitta Shamak. It's very good for, and it's another important is that it is useful in oligospermia also. Oh, It's very okay, good sir. sucral also. So Sir, Palash with is a milk water, देते हैं sir? milk like, not milk, that gum, प्लेन gum. प्लेन पानी गन। किससे देते हैं sir? Gum dete. And the palash is very typical plant because the palash seeds are shukra nashak are there. If you give palash seed to the patient, it will cause some coronary effect. But if you give the gum, it will increase the what you call sperm count. So very typical. Hello. Sometimes we will discuss about this one. सर इसके पत्र का वापस Thank you, बताइए सर, thank पत्र you. का प्रयोग करें, बताया Am I आपने audible? पलाश के पत्रों का। पलाश You are पत्र वेरी audible. गुड। पलाश के पत्रों का पाउडर बना लेना। शर्मा जी आप मैम फाइब्रोइड के लिए क्या दे सकते हैं? एक मिनट संगीता जी, Uterus एक मिनट fibroid. रुकिए, एक मिनट रुकिए संगीता जी। हाँ, कौन बोल रहे हैं? ठीक है। पलाश पत्र का पाउडर दूध के साथ दीजिए। पलाश पत्र का पाउडर दूध के साथ देना है मैडम जी। अच्छा हाँ जी। मेंसेस संगीता आने के भटनागर बाद, जी आप कुछ महामारी आने के बाद जी जी संगीता भटनागर जी आप कुछ पूछ रहे हैं? जी हाँ, यूट्रस फाइब्रोइड के लिए क्या दे सकते हैं सर? 12 mm का है एक के यूट्रस फाइब्रोइड। 12 mm is Madam. very small, ma'am. You need not worry. Just a normal Varnadi Kashaya or anything also will do. 12 mm, where is the 12 mm we have to see, ma'am? If it is in submucosal, it may cause bleeding. If it is intramural, subserosal, there is nothing to worry. 12 mm is only 1 centimeter. There is nothing to worry. तो मैम मेरे 2 पेशेंट हैं, एक के 12 mm है, एक के 20 mm है। तो 20 mm वालों के पीरियड्स में बहुत पेन होता है। Okay, okay. और उनको फिर रिमूव के लिए कहा है एलोपैथी डॉक्टर ने। तो उनके अपन क्या कर सकते हैं जिनके 20 mm है उनके लिए? नहीं मैम, we can give very basic medicines. सुकुमारम कषायम, वरनादि कषायम ऐसा भी दे सकते हैं, क्योंकि 2 सेंटीमीटर बहुत जल्दी कम हो जाता है मैम, उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। 20 mm के रूम में Yes, ma'am. 20 18 mm to तो 20 2 mm सेंटीमीटर देना मैम। जी। 2 सेंटीमीटर जनरली अबव 4-5 सेंटीमीटर बहुत प्रॉब्लम्स देते हैं मैम। 2 सेंटीमीटर इतना ही काफी हो जाता है मैम। इट्स मोर देन इनफ ये करने से। नहीं तो बहुत पेन है तो यू कैन स्टार्ट विथ कुछ गुड अनुलोमना, वस्ती भी दे सकते हैं। पेन शायद इससे नहीं हो, 2 सेंटीमीटर इतना पेन कॉज करने का चांसेस कम है, क्योंकि फाइब्रॉइड्स में पेन कैसा होता है, फाइब्रॉइड जो भी इधर जो फाइब्रॉइड है, इफ इट इज गेटिंग दिस कॉन्ट्रैक्शन, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है, इट विल नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन, इसीलिए पेन होता है। 2 सेंटीमीटर से उतना नहीं होता है जब जितना 5 सेंटीमीटर ऐसा होता है। सो मे बी पेन इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट, ओनली वाता भी हो सकती है। सो प्लेन अनुवासन वस्ती देने से भी आपका प्लेन वो क्या बोलते हैं दानवंतरम तैलम, नहीं तो क्षीरबला 101 क्षीरबला तैलम, सुकुमारम घृतम, इससे भी अनुवासन वस्ती देने से भी कम हो जाता है मैम। सो देयर इज इंटरनली प्लेन वरनादि कांचनादि गुगलू ऐसा भी चलता है मैम। Pain may not be because of the fibroid, ma'am. That's what I think, ma'am. Anybody else? और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर हम अब एक के ना यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोन है अराउंड 20 mm का। सुरेश जकोटिया सर है, सुरेंद्र शर्मा सर है, मैं क्या बताऊं मैम उसके बारे में। मैं आई डोंट ट्रीट मच मैम। जकोटिया सर? शर्मा जी बोलिए, आप स्पेशलिस्ट है। नहीं, कोई प्रश्न पूछ रहे थे वो मैडम, तो आपको रेफर कर रहे हैं मैडम। हमारे गुरु जी बैठे सुरेंद्र शर्मा जी बोलेंगे, उनके पास बहुत पेशेंट आते हैं। जी 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 सर। स्टोन्स के लिए बहुत सारे पेशेंट्स है सर का।
कोई एग्जाम्पल हो तो बताएं। दीजिए, वरुणादि कषाय दीजिए। और साथ में रुणा कसाई के अलावा और अगर पेन ज्यादा है तो कुबेरा छोटी दीजिए। उनके हेमेचूरिया हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। पानी अच्छा पिलाइए। गोक्षुर और पाषाण वेद के पाउडर दीजिए मिला के। शर्मा जी हजरत दाऊद भी, हाँ, हजरत दाऊद हजरल भी दे सकते हैं। क्या सर? हजरल यहूद भस्म। सर थैंक यू सर। और किसी का कोई Hirsutism in a 15 years girl with Not much regular of a cycle. result, ma'am. Not much result, ma'am. Okay. और कोई किसी का प्रश्न है? एनीबडी एल्स? डॉक्टर मनीष पोखरा, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपने हैंड रेज किया है। नमस्ते मैम, मैं मनीष पोखरा उदयपुर राजस्थान से। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ मैम कि मायोमेट्रियम की थिकनेस अगर पेशेंट्स जो 45-50 के आसपास के होते हैं उनको एक्सेस ब्लीडिंग भी रहती है, कभी रुक जाती है, कभी 5 से 10 दिन तक रहती है, तो उस कंडीशन में अगर हम उत्तर बस्ती देना चाहें तो किन चीजों की उत्तर बस्ती दे सकते हैं? सर जनरली इस कंडीशंस में इंटरनली हम शतावरी का फ्रेश रूट, शतावरी का कल्क फ्रेश बहुत अच्छा यूज हो रहा है सर। कमिंग टू उत्तरवस्ती, सेम विथ शतावरी आदि घृता इफ यू गिव, और अशोक घृता is having very good result. Generally, if it is perimenopausal, we have a very good result with the Vidaryadi Grita. Vidaryadi Hridyo Brahmano Vata Pittaha. So from Pitta to Vata, when it is transition is there, Vidaryadi Grita has a very good result in this condition, sir. मैम आपका नंबर भी चाहिए इफ एनी टाइम, बिकॉज गायनिक पेशेंट्स आते रहते हैं, बट कुछ डिस्कस करना हो तो मैम नंबर मिल जाए तो हम आपसे वापस इसके बारे में और केसेस के डिस्कस कर सके। Okay, sir. I have sent, sir. थैंक यू। मैसेज में डाल सकते हैं। और वैसे आप अगर उसमें देखेंगे, जो आपने देखा होगा, तो उसमें लास्ट में मैडम का नंबर था उसमें जब फिनिश किया था उसको। ठीक है। और एनीबडी एल्स? कोई किसी का प्रश्न है? नहीं तो फिर अभी फिनिश करेंगे। ठीक है, आगे one request from my side, from all the Vaidyagan, please support my medicines. Please try it. If you are happy, you can continue to use it. Thanks a lot. Sure. ठीक है, तो आगे बढ़ाएं। सुरेंद्र गौतम जी फिनिश की ओर ले चलें। जी सर। हाँ जी। तो हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर पुष्पला बद्रीनारायण मैम। आपने अत्यंत सरल, साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीके से आयुर्वेद द्वारा सामान्य स्त्री रोग समस्याओं के उपचार पर महत्वपूर्ण जानकारी दी।